سوشل میڈیا کے اس دور میں چہروں کی کتاب یعنی کہ فیس بک کو اہمیت دی گئی ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم مصنفین کی کتب سے دوستی کرتے تو ہمارے معاشرے میں اخلاقی اقدار کی اس قدر گراوٹ نہ ہوتی، بلکہ علم کی روشنی سے ہم اپنے دین و دنیا کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ محبتیں اور آسانیاں تقسیم کر رہے ہوتے۔ کتاب بینی کے ساتھ ساتھ فیس بک کا بہترین مصرف بھی ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن سوشل میڈیا کی رنگینی نے نوجوانوں کو اپنے حصار میں لے کر کتاب دوستی ناپید کر دی ہے۔ ڈیجیٹل یا سکرین پر کلک کے اس دور میں کتاب کی اہمیت سے کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس مقصد کے لیے نئی نسل کو کتاب کی اہمیت سے روشناس کرانے اور کتب بینی کے فروغ کے لیے اٹک کی 117 سالہ تاریخ میں پہلی بار کتاب میلے کا انعقاد گزشتہ سال بلدیہ اٹک کے چیئرمین شیخ ناصر محمود اور وائس چیئرمین ملک طاہر اعوان نے کیا تھا۔ اس طرح کتب بینی کے فروغ، ضلع اٹک کے مصنفین اور علم دو شخصیات کو ایک پلیٹ فارم پر لانے اور انہیں متعارف کرانے کا سہرا ان شخصیات کے ساتھ ساتھ چیف آفیسر بلدیہ اٹک سردار آفتاب احمد خان، ممتاز ادیب مشتاق عاجز، پروفیسر نصرت بخاری، طاہر اسیر، ثقلین انجم، راجہ زاہد حسین، سید مونس رضا اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ دوسرا کتاب میلہ بھی بلدیہ اٹک کے سبزہ زار میں منعقد کیا گیا، جو صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہا۔ کتاب کے شوقین یا قارئین کو اس میلے میں آ کر جہاں پسند کی کتاب خریدنے کا موقع ملا، وہیں صاحب کتاب سے بھی ملاقات ہو گئی، جس سے کتاب کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ میلے میں اٹک کے اہل قلم کی نادر اور نایاب کتابیں نمائش کے طور پر رکھی گئیں۔ اٹک کی علمی و ادبی روایت کو یوں ایک میلے میں واضح کرنا واقعی ایک منفرد تجربہ رہا۔ شائقین علم و ادب نے قدیم اور نادر و نایاب کتب کی برگردانی کی اور اٹک کے اہل قلم کی کاوشوں سے واقف ہوئے۔ میلے میں بزرگ محقق اور تاریخ دان راجہ نور محمد نظامی اور حضروں کی ادبی تنظیم بہار نو کے سٹالز پر قدیم اور نادر کتابوں کو نمائش کے طور پر پیش کیا گیا۔ شائقین کی بھرپور دلچسپی رہی۔ شرکاء نے چھچ نیوز نیٹ ورک سے گفتگو میں میلے کی ضرورت، افادیت اور کتب بینی پر روشنی ڈالی، اور منتظمین چیف آفیسر سردار آفتاب احمد خان، میونسپل آفیسر ندیم فیروز، ادیب و محقق پروفیسر نصرت بخاری، طاہر اسیر، ثقلین انجم، راجہ زاہد حسین اور سید مونس رضا کی خدمات کو سراہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار علی خان صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ نثار صاحب، میرا تو یہ پہلے دن سے یہ کہنا تھا اور میرا ایمان ہے کہ جب سے ہم نے کتاب کو چھوڑا ہے ہماری دین اور دنیا دونوں میں مساوا ہو رہی ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اٹک شہر میں یہ 2 سال سے کچھ دوستوں میں مل کے بلدیہ کتابوں سے ایکٹیویٹی شروع کی ہے، اور یہ ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جس سے ہماری آنے والی نسل کو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا جو سرمایہ وہ تو کتابوں میں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ ایکٹیویٹی صرف ضلعی ہیڈ کوارٹر پہ نہیں بلکہ ہر تحصیل کی ہونی چاہیے، اور اس سے جو آنے والے مصنف ہیں ان کو کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور ہمارے آنے والی نسل کو بھی پتہ چلے گا کہ کیا کیا سرمایہ ہمارے بزرگ کو۔ بہت شکریہ، آپ ہر جگہ علم اور ادب کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا جزاک اللہ۔ بہت شکریہ نثار۔ بلا شبہ بلدیہ اٹک اور ہمارے اٹک کے بہت بڑے شعراء اور ادباء کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آپ یقین کریں اس دور کلام جب ہم کتاب سے دور ہو چکے ہیں، جب کتاب دوستی کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے، اور خاص کر ہمارا ملک اس وقت آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کن مسائل میں گھرا ہوا، میں اس کی ایک مین وجہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم کتاب سے دور ہو چکے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام کیا تو پھر پہلی کتاب جو ہم پر نازل ہوئی، پہلی کتاب کی شکل میں وہ قرآن مجید ہے، جس میں دنیا کے تمام مسائل اور ہماری تمام تکالیف کا حل موجود ہے۔ وہ کتاب کا سلسلہ جو ہے آج چلتے ہوئے ندیوں اور شہروں تک پہنچا، اور ہمارے یقین کریں کہ اٹک کے ادیب اور شعراء جن میں طاہر اسیر صاحب ہیں، مونس صاحب ہیں، مشتاق صاحب ہیں، اور دوسرے بہت بڑے نصرت بخاری صاحب ہیں، یہ ہمارے سعادت حسن آس ہیں، ان پر باقاعدہ شخصیت ہو چکی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ملک کے کسی نامور ادیب کے مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس زمانے میں یہاں پر یہ کتاب میلہ سجانا اور لوگوں کو ایک شعور، ایک فکر، ایک سوچ دینا کہ کتاب سے دوستی رکھیں گے تو آپ کے بہت سارے مسائل ہوں گے، خاص کر نوجوان لوگ
तालिब इल्मों अगर वो किताब से दोस्ती रखें तो उनके ये जो बेरोज़गारी के मसाइल हैं, ये जो सोशल मसाइल हैं, ये जो तन्हाई के मसाइल हैं, ये जो माशी मसाइल हैं, उन तमाम का हल किताब में मौजूद है। बुक्स की बात करें तो आज फेसबुक के नौजवान इन बुक्स की तरफ नहीं आ रहे हैं और फेसबुक की तरफ जा रहे हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि एक दुनिया में साइंसी जो एक आगाही है वो फैल रही है, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं। आप देखें कि फेसबुक से जहाँ कुछ अच्छी बातें हैं वहाँ पर अक्सरियत जो है ज़्यादातर वो मैं समझता हूँ कि उनमें बुराइयाँ शामिल हैं। और वो एक ऐसी चीज़ बिल्कुल वो इसलिए कि वो अनब्रिडल्ड जिसे कहते हैं कि जिस पर कोई पाबंदी नहीं है, और इस तरह की बातें हम प्रोपेगेंडों में, सियासत में, एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालने में, और आप देखें कि कौम के अंदर जो एहतराम, मोहब्बत या जो वो रिश्ता था वो ख़त्म, और उसकी वजह ये किताब से दूरी है, इन किताबों से दूरी है। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ यहाँ के अदीबों और शायरों को भी और बल्दिया तक को भी, और आपके छक्स नेटवर्क का तो मैं परमानेंट आपको पता फ़ैन हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज के इस किताब मेले का इनेकाद हमारे यहाँ जो एक कमेटी है, हमारे जो लोकल जो हमारे मुसन्निफ़ीन हैं, शुअरा हैं, ये उनकी काविश है। पिछले साल से इसका इनेकाद किया गया और इस साल हमने इसको एक कदम आगे बढ़ाया है। तो इस किताब मेले में तकरीबन पिछले साल 5000 के करीब कुतब थी, इस साल हमने इसको थोड़ा बढ़ाया है, 60 स्टॉल लगाए हैं और तकरीबन 6000 कुतब है इसमें। पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा ये है कि पिछले साल लोकल शुअरा थे, लोकल मुसन्निफ़ीन थे, लोकल जो हमारे स्टॉल लगाए हुए थे लोगों ने। इस साल हमने पिंडी इस्लामाबाद और पेशावर से, नौशहरा से, केपी से काफ़ी लोग हमारे मेहमान आए हैं, तो उनकी कुतब और उनके आप जो शेरी मजमूई हैं, उसके अफसाने हैं, उनके नावल हैं, आप उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। मेरी नौजवान नस्ल से, अटक से जो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे अदबी हल्के जो हैं, उनसे गुजारिश है कि वो इसे विज़िट करें और यहाँ आके जो बड़ी एक अच्छी और बड़ी मुफीद कुतब हैं उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें। जी बहुत सरदार आफ्ताब साहब का बहुत ममनून हूँ जो उन्होंने ये मेहनत सिखाई है, और ये एक रवायत शुरू हो गई है जिसमें तमाम अटक जो हैं बहुत बड़े बड़े नाम हिस्सा ले रहे हैं, और उनकी वजह से ये किताब मेला शुरू हो गया। किताब मेला एक आम सी बात नहीं है, हमने अपने बच्चों को किताब से बड़ा दूर कर दिया है। हमारे पास अब बच्चों की बहुत सारी और ऐसी आसानियाँ हैं, लेकिन किताब से मुतारफ़ कराना बहुत बड़ी बात है। मैं बुखारी साहब की बात बढ़ाता हूँ, मैं उनको सुन रहा था, वो कहते हैं कि हमारा ये मकसद है कि यहाँ जो लिखने वाले हैं, जो लिखने की तहरीक है, वो बच्चों में होनी चाहिए कि किताब भी लिखना बहुत बड़ी बात है। आज के सामने बहुत सारे नए किस्म के हीरोज़ हैं, वो ठीक है, उनकी अपनी हैसियत है, लेकिन किताब के साथ हमारा ताल्लुक जुड़ा रहना चाहिए, और ये ताल्लुक जो है ये सारी ज़िंदगी के लिए। आप एक किताब लेके अपने पास रखें, संभालते हैं, पढ़ते हैं, आगे जो आपसे पढ़ता है तो फिर ये एक सिलसिला चल पड़ता है। दोस्ती यही कह रहा था, और क्या है कि ये दिमाग होते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया भैया आपका। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और अपने तमाम दोस्तों की तरफ से मुंतज़मीन किताब मिला, और इसमें यहाँ पर मैंने यह महसूस किया है कि जो हमारे बल्दिया के चीफ ऑफिसर हैं उनकी बड़ी काविश है, उनकी इंतज़ामिया की बड़ी काविश है, और जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी इल्मी की शख्सियात हैं, कामयाब मेला के साथ उन्होंने मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी सर, हमारे साथ मेंबर ह्यूमन राइट्स मैडम के सर मौजूद हैं, इस किताब मेले के हवाले से इनके तासुरात देते हैं। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैंने पहले अली खान और ENS, ये मेरे लिए बहुत एजाज़ है कि मैं आज आपके चैनल की बात कर रहा हूँ। ये जो मेला दूसरी साल ये लगा है, एक बहुत
खुश आयन बात है, आज का नौजवान किताब को देख जा चुका है, और अगर ये किसी वर्किंग डे पे होता मेला लाजमी यहाँ पे लड़कियाँ और लड़के आते ताकि उन्हें किताब की तरफ आज जो है सब किताब तो बहुत आई, लेकिन जो है वो पब्लिक तरफ बहुत कम है। नंबर रिक्वेस्ट है हुकूमत पंजाब की भी और वहाँ की हुकूमत की कि वो भी इस तरह के मेले लाजमी हर जगह पे लगवाएं जो अच्छे बहुत अच्छे मेले लग सकते हैं। किताब का फरोग जरूरी है और दूसरा काम किताब मेला बहुत कामयाब जा रहा है। गुज़श्ता साल अटक की तारीख में पहली दफ़ा किताब मेले का इनकाद किया गया था। इसका मकसद नौजवान नस्ल को किताब की अहमियत और वसीयत से रोशना बताना था, क्योंकि वादा परस्ती और नफ्स नफ्स के इस दौर में नौजवान नस्ल किताब से दूरी तैयार करती जा रही है और सोशल मीडिया से मुंसलिक होने का और सोशल मीडिया का रुझान बढ़ता जा रहा है। तो ज़रूरत ये समझ की थी कि नौजवान नस्ल को किताब पीने की तरफ वापस लाया जाए। ये इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। गुज़श्ता साल अटक के मुसन्निफ़ीन की जितने भी बुक्स हैं वो जहाँ पे स्टॉल लगाए गए थे, किताब मेले का इनकाद किया गया था। उसमें न सिर्फ किताब बल्कि किताब लिखने वाले भी थे, वो तहरीर के लिए जहाँ पे हाज़िर थे और उनसे मुलाकात का संस्कार हुआ और उनको किताब दिया और किताब ख़रीदने का भी ख़त्म होता जाता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि लोग 1000 का बर्गर तो खा लेते हैं लेकिन 500 की किताब खरीदना पसंद नहीं करते। तो मेरी ये गुजारिश होगी तमाम तलबा से, तमाम पब्लिक से कि आएँ और देखें इस लटक की ज़मीन बड़ी दरख्त है, यहाँ बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स हैं। जिस तरह आप हैं, आप ये कर रहे हैं, हमेशा आपकी कोशिश होती है कि छश में, खसूस नजरों में और लटक में प्रमोट हो। इस तरह मैं कहूँगा कि इस तरह के किताब मेले जो हैं वो तहसील सतह में मुनक़िद किए जाएँ। बहुत मेहरबानी सर, आपने मुझे वक्त दिया। इस दौर में हम रह रहे हैं, ये किताब दुश्मनी और इल्म बेदारी का दौर है। इस माहौल में जिन लोगों ने यहाँ किताब मेले का बंदोबस्त किया है वो माशरे के बहुत बड़े बोसे हैं। बल्दिया अटक के सब्ज़ार में किताबों की शक्ल में अपने जिगर के टुकड़े सजाए बैठे हैं। इस पर मैं इंतज़ामिया के तमाम अरकान को, जिन लोगों ने मेले के लिए वक्त निकाला और अटक के दूर दराज देहात से यहाँ किताबें लेकर तशरीफ़ लाए, किताबें देखने के लिए तशरीफ़ लाए, मैं उन सबको सलाम करता हूँ। कोई तहज़ीब किताब के बग़ैर परवान नहीं चढ़ सकती, किताब के बग़ैर बाकी नहीं रह सकती। इसलिए अगर हमने अपनी नस्लों तक उस पर सोच पर पहुँचाना है तो ज़रूरी है कि किताब के साथ उनके ताल्लुक़ को फिर से कायम करना होगा और किताब की तरफ लौटना होगा। बहुत मेहरबानी। साबका सदर बार एसोसिएशन ज़िला अटक किताब है एक बेहतरीन एक्टिविटी तो है। राना अफसर अली खान साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारे साबका काउंसलर हैं। क्योंकि हम बच्चों को लेके जाते हैं, बहुत शुक्रिया सर। हमसे सीखते हैं, वो ग्राउंड में चले जाते हैं। ये जब हमारे यहाँ बल्दिया में बतौर काउंसलर थे, अवान साहब वाइस चेयरमैन साहब थे, उन्होंने दोस्तों से ये किताब मेला मुनक़द हुआ था और आज ये दूसरा साल है किताब मेले का मुनक़ाद हो रहा है। तो ये रवायत इन्होंने रखी थी, अल्लाह इनको खुश रखे, अल्लाह सेहत दे। किताब मेला में लेके आएंगे और यहाँ तो जो बच्चा है उसमें एक तहरीक पैदा होती है। बच्चा जो है वो तवज्जो भी मांगता है और उसकी अपनी अहमियत भी है। जब वो देखता है कि साहिब किताब को अहमियत दी जा रही है तो वो चाहता है कि मैं इस जगह पर मैं बैठूँ। जैसे क्रिकेट के मैच होता है, वो कहता है मैं वसी बैठूँ। क्यों उस वसी पर बनना चाहता है कि उसकी पजीराई होगी। वो क्यों रोनाल्डो बनना चाहता है कि टीवी पर देखता है तो यहाँ बच्चे जो है सिर्फ किताब देखते हैं, सिर्फ किताब नहीं देखते, अदीब भी देखते हैं। और आप जैसे दोस्त आप वो समझता है, वो बच्चा कहता है कि काश ये इंटरव्यू मेरा लिया जा रहा है, ये भी शौक पैदा होता है। तो हमने ये मौका उनको फराहम किया है
اور میں سمجھتا ہوں کہ بسمillahirrahmanirrahim. میں سب سے پہلے چند نیوز نیٹورک ٹی وی کا بہت مشہور آپ شریف آیا ان سے اور آپ نے اس کتاب میلے میں کور کی. اس کتاب میلے میں 7-10 بجے اس کا افتتاح ہوگا اور یہ 4 بجے تک جاری رہے گا. 6000 کتب یہاں لگائی گئی ہیں اور ہمارے مصنفین مختلف علاقوں سے یہاں آئے ہیں. پی ڈی گیپ، جنڈ، اٹک، درو، سبزدار، ٹیکسٹا، جیلم، راولپنڈی، اسلام آباد سے جتنے بھی یہاں مصنفین آئے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں سے یہاں باغ لگائے ہیں. ان کتابوں کا مقصد یہ ہے لگانے کا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے جو غیر موبائل ہیں خیال کی طرف ہے اور دیگر کا ان کو یہ آگاہی دینا ہے کہ آپ کتاب سے محبت کریں. جو بھی کتاب سے محبت کرے گا وہ انشاءاللہ کتاب کی اپنیت سے فائدہ اٹھائے گا. بہت